be satisfied with the class, with the modus operandi it has been thought to be delivered, with the objective it has been delivered, with the content what we have promised. I think we have all deliberated all the topics in our sessions, and truly speaking, I am very uh, feeling very good enough to have participants like you who have taken active participation in all the 10 classes, and I believe today it is also going to be happen like the same. So starting with the day, on request of many participants, we have decided to cover the practical aspects of annual return under GST. The screen showing on your slide, the screen visible on your screen, visible on your laptop. We have discussed this slide on the return session. I am just taking you forward with this slide again, and after this slide, we will discuss the practical aspects of annual return under GST. So first, we have what we have discussed is the GSTN 9. GSTN 9 is an annual return. 9C where it is a reconciliation statement. 9 क्या होता है? 9 is the summary of GSTR 3B, GSTR 1 filed during a period. हर महीने की हम GSTR 1 फाइल कर रहे हैं, हर महीने की हम GSTR 3B फाइल कर रहे हैं. The government felt very difficult कि हम असेसमेंट कैसे करें, हम चेकिंग कैसे करें. तो सरकार ने कहा कि हम 24 रिटर्न्स नहीं चेक करेंगे, आप एक काम करिए, सिंगल रिटर्न GSTR 9 फिल करिए, हम उससे ही आपकी सारी रिटर्न्स को एक फाइनल रिटर्न मान लेंगे फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, एंड जितनी भी असेसमेंट्स होंगी हम उस रिटर्न को बेस लेके करेंगे. तो गवर्नमेंट हैव आस्क्ड कि आप आफ्टर एन ईयर एंड एक सिंगल रिटर्न फाइल करिए व्हिच इज अ समरी ऑफ GSTR 3B and GSTR 1 that is called as GSTR 9. Whereas GSTR 9C, it is very important to know the difference between GSTR 9 and 9C. 9 is the summary of 3B and 1 filed during a particular year, whereas 9C is a reconciliation statement. Reconciliation statement of what? Reconciliation statement कि आपने रिटर्न में कितना टर्नओवर दिखाया है, आपने रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना लिया है, with the books of accounts, with your tally, with your audited accounts, with accounts you have disclosed in your income tax account books. इनकम टैक्स में या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका कितना टर्नओवर आ रहा है, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है, कितना टैक्स आ रहा है, उसका ऑडिट है, उसका एक रिकंसिलेशन है. द एनुअल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. इट इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, whereas 9C is an audit report. 9C is an audited reconciliation statement, need to be mandatorily done by an external auditor. 9, everybody needs to do this, file this annual return. For 18-19, government has exempted the clients whose turnover, aggregate turnover is up to 2 CR, whereas 9C is applicable only for SSCs having turnover more than 2 CR. For financial year 18-19, the exemption has been provided for SSCs having turnover up to 5 CR. The late filing fee of GST 9 is 200 rupees, whereas the late filing fee or the penalty for GST 9C can go up to 50,000 rupees, 25,000 under each CGST and SGST. With this slide, I am completing with the theoretical part of the annual return and the reconciliation statement. Now I will take you through with the practical aspect, table by table, point by point, what has to be filled in each of the column of GST 9 and 9C. We will discuss it on the GST portal, how to file the GST 9.
Hope everybody is able to see the GST portal on your screen. So here you are seeing the GST portal. On the once you log into the portal, you will get the option annual return. एनुअल रिटर्न पे क्लिक करेंगे. इट विल आस्क फॉर द फाइनेंशियल ईयर. आप कौन से ईयर की फाइल करना चाहते हैं. इट डजंट से कौन से मंथ की फाइल करना चाहते हैं. एनुअल रिटर्न इज ऑलवेज फॉर एन ईयर. फॉर एग्जांपल, you want to file it for 1890. I will click on the search option. It will show you two options: annual return GSTR 9, reconciliation system GSTR 9C. ऑफलाइन के लिए GSTR 9 में अगेन गवर्नमेंट की तरफ से एज लाइक GSTR 1 एक एक्सेल फाइल आती है. सिमिलर ऑप्शन जैसे हमने GSTR 1 में देखा था, एक्सेल पोर्टल पे होता है, उसका साइमल्टेनियसली एक्सेल फाइल होती है. सिमिलरली GSTR 9 की भी जो हम पोर्टल पे चेक करेंगे, उसकी सेम एक्सेल फाइल आती है. वो एक्सेल फाइल को आप यहाँ पर प्रिपेयर ऑफलाइन में अपलोड कर सकते हैं एंड सेम फिगर्स विल रिफ्लेक्ट इन योर ऑनलाइन पोर्टल. So we will not see the Excel file, but we will definitely see the point by point on the prepare online option. You go on to the prepare online option. It will simply ask you first, do you want to file a nil return? And I will say no. Next. There it opens the complete GSTR 9. GSTR 9 in all together have 19 points. You see 18 and the 19 point for late fee and payable and paid. We will go point by point. As I said earlier, this GSTR 3B, this GSTR 9 is a summary of GSTR 1 and a summary of GSTR 3B. So, summary टोटल करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा. तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप प्लस करोगे, इससे बढ़िया हम आपको प्लस करके दे ही देते हैं. तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऑलरेडी सबमिट डाउनलोडेड GSTR 1 समरी का ऑप्शन दे दिया. जो आपने 12 मंथ की समरी GSTR 1 फिल करी है, उसकी PDF फाइल आपको यहाँ से मिल जाएगी. वो कैसी दिखती है, लेट मी शो यू. कंप्लीट मंथ 12 मंथ का GSTR 1 आपकी स्क्रीन पे समरी बन के आ जाता है पोर्टल की तरफ से ऑटोमेटिकली PDF फाइल, जिसके अंदर सभी टेबल्स आ जाती हैं. 4B 4A जो हमने GSTR 1 में टेबल्स देखी थी, उनका टोटल आ रहा है पूरे साल का. पूरे साल में आपने टैक्सेबल वैल्यू कितना करा है, IGST कितना करा है, सेंट्रल टैक्स कितना करा है, वो आ जाता है. B2C सेल कितनी है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट कितना करा है आपने, अनरजिस्टर्ड एक्सपोर्ट इनवॉइसेस B2C. दिस अ कंप्लीट ईयर समरी. Similarly, you can see the 3B summary. थ्री बी का एग्जैक्टली 3B फॉर्मेट में आ जाएगा. आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई कितना करा है आपने, जीरो रेटेड, नील रेटेड, एलिजिबल ITC आपने कितना कितना लिया है. दिस कंप्लीट डिटेल्स गॉट विजिबल हियर. दिस इज फॉर योर रेडीनेस, फॉर योर रेफरेंस ओनली. मोर ओवर गवर्नमेंट ने आपकी एक और हेल्प भी करी. GSTR 3B एंड GSTR 1 के साथ कहा, since GSTR 9 is a summary of GSTR 3B and 1. Since GSTR 9 is a summary of GSTR 3B and 1, आपने ऑलरेडी GSTR 3B और GSTR 1 में दी हुई है, उसी की समरी GSTR 9 में आती है. तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने अपने बैकएंड सिस्टम को यूज करते हुए एक अपने आप GSTR 9 बना के दे दी क्लाइंट की. क्लाइंट को कहा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपकी GSTR 9 हम ही बना देंगे. तो GSTR 9 एक सिस्टम से भी निकल के आती है. वो GSTR 9 कैसी होती है, दिस इज सिस्टम पॉपुलेटेड GSTR 9. You can download it at the initial, you can download at the initial. ये PDF आपको हेल्पफुल होगा
जब आप अपनी जीएसटी 9 बना लेंगे, अपनी वैल्यूज निकाल लेंगे फॉर कंपैरिजन कि गवर्नमेंट ने जो जीएसटी 9 बनाई है और आपने जो जीएसटी 9 बनाई है उसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है, you should analyze the difference and take the accordingly action, take the necessary action accordingly. So this is the basically the readiness in the auto population of data which the government provides. Now we are going to see the table by table. I have opened the first table. It starts with the table point number 4. It talks about details of advances. Please everyone be concentrate on the topic. This is very important. On your request only I am covering this topic. So I will request your uh, concentration on this topic. It starts with the details of advances, inward and outward supply made during the financial year. So with this, the GST 9 has been divided into three parts, I would say. First is output part, second is input part, third is payment part and other necessary information. So first we are dealing with the output part. Output part says, first table in the output part, supply made to unregistered person. आपने पिछले 12 महीने में अनरजिस्टर्ड पर्सन को जितनी भी सप्लाई करी है, जितनी भी सेल करी है, उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना है, इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है, सेंट्रल टैक्स कितना है, स्टेट टैक्स कितना है. फॉर योर इंफॉर्मेशन दिस टेबल 4 टॉक्स ओनली अबाउट द पॉइंट्स जहां पर आपको टैक्स लाइबिलिटी आ सकती है. आपको भी ये पॉइंट माइट भी इतना क्लियर नहीं होगा, बट आई विल डिस्क्राइब यू अगेन दिस ऑन दिस पॉइंट. टेबल नंबर 4 पॉइंट नंबर ए, B2C सप्लाई कितनी करी है आपने. टेबल नंबर 4 पॉइंट नंबर बी, B2B सप्लाईज कितनी करी है आपने. आपने रजिस्टर्ड पर्सन को कितनी सेल करी है, उनकी टैक्सेबल वैल्यू, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स एंड द स्टेट टैक्स. जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट भी आई हैवंट डिस्क्राइब्ड यू फर्दर. इट कुड बी पॉसिबल कि आप विद पेमेंट विदाउट पेमेंट भी कर सकते हैं. जनरली विदाउट पेमेंट होता है तो वो यहाँ पर नहीं आएगा. ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स एक एक्सपोर्ट ऐसा भी होता है जो आप पेमेंट ऑफ टैक्स जीएसटी पे करके कर सकते हैं. तो वो ऐसा कोई जीएसटी होता है, ऐसा कोई एक्सपोर्ट होता है. आई हैवंट कवर्ड दिस टॉपिक इन द क्लास. वो एक्सपोर्ट यहाँ पर आता है बट जनरली एप्लीकेबल होता है. तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 0 आ रही है. सप्लाई टू SEZ ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स. SEZ इज नथिंग बट इट इज एन एक्सपोर्ट. इंडिया में कुछ ऐसा पार्ट है, 18 रीजन ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट ने बोला ये आउट ऑफ इंडिया कंसीडर होंगे. अगर आप उनको कुछ सेल करेंगे तो SEZ एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा. तो उन रीजन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बोलते हैं. तो वहां पर अगर आप कुछ सेल करते हैं तो इट विल बी ट्रीटेड एज लाइक एक्सपोर्ट. तो फर्स्ट पॉइंट में आउट ऑफ इंडिया, सी पॉइंट में, डी पॉइंट में इन इंडिया विच इज ट्रीटेड एज एन एक्सपोर्ट. डीम्ड एक्सपोर्ट, दिस इज स्पेसिफिकली डिफाइंड अंडर द लॉ. डीम्ड एक्सपोर्ट, अगर आपने कुछ डीम्ड एक्सपोर्ट करा है, फॉर योर नॉलेज ओनली, डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब आपने किसी पर्सन को एक्सपोर्ट करा है, किसी पर्सन को सेल करी है, हु इज गोइंग टू फर्दर मेक इट आउट ऑफ इंडिया सेल, तो उसको डीम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं. Advances on which taxes has been issued but invoice has not been issued. Please listen it carefully. Advances, ऐसे advances जिसके ऊपर अपने टैक्स तो पे कर दिया है बट इनवॉइस इशू नहीं हुआ है. इनवॉइस इशू नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी कवर्ड इन B2B B2C सप्लाईज. बट एडवांसेस हैं, आपने टैक्स पे कर चुके हैं. सो यहाँ पर सिर्फ सर्विसेज का एडवांस जाएगा, हम टैक्स पे नहीं करते हैं. तो यहाँ पर सर्विसेज के एडवांसेस आप लिखेंगे. एंड द लास्ट पॉइंट इन द टेबल सेज इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. ऐसी सप्लाईज, ऐसी रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई, प्रोक्योरमेंट्स जिसके ऊपर टैक्स आप पे करेंगे, तो उनकी यहाँ पर वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू एंड इंटीग्रेटेड एंड रिस्पेक्टिव टैक्सेस यू हैव टू शो. यहाँ पर जितना भी वैल्यू आया है ग्रॉस वैल्यू आ गया. यहाँ पर इसका सब टोटल निकल के आ गया A2H के अंदर. आफ्टर ऑल, आफ्टर क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सप्लाई टैक्सेस डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट. आपने कुछ डिस्क्लोज करा था, बाद में उसकी अमेंडमेंट करके चेंज कर दिया है, तो उसको प्लस या माइनस करना है. तो यहाँ पर ये प्लस माइनस हो जाएगा, इसका टोटल आएगा एंड फर्दर दोनों कॉलम्स का टोटल आके इस टेबल के अंदर क्लोज हो जाएगा. दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट नंबर 4, जहां पर हमने वो वाली सप्लाई डिस्कस करी जहां पर हमारी टैक्स लाइबिलिटी
जहां पर हमें गवर्नमेंट को एक्चुअली में टैक्स पेएबल है, वो वाली सप्लाईज हमने यहाँ पर कवर करी है। बट इसके अलावा भी बहुत सारी सप्लाईज होती हैं, वो आती है टेबल नंबर 5 में। टेबल नंबर 4 एंड टेबल नंबर 5 फॉर्म्स पार्ट ऑफ आउटपुट पार्ट। जो हमारे 3 पार्ट होते हैं जीएसटी 9 के, उसके फर्स्ट पार्ट में 2 पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 सेज जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट, SCZ को सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय द रिसिपिएंट। एज लाइक जो हमने, इफ यू रिमेंबर, हमने क्लास में डिस्कस करता, हमने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड की थी जिसके ऊपर रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा। ऐसी सप्लाईज का टोटल, एग्जेम्प्टेड का टोटल जिसके ऊपर जीएसटी नहीं एग्जेम्प्ट है, जिसके ऊपर नील रेटेड है, नॉन जीएसटी सप्लाई, सब टोटल ऑफ दिस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड अमेंडमेंट इन रिगार्ड टू दिस। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अमेंडमेंट इन रिगार्ड टू अबव सप्लाईज अगर कुछ है, that has to be disclosed in table 5, and the table of point number 4 and the point number 5 comes here, total turnover including advances. Point number 4 talks about the output tax, output sales जिसके ऊपर टैक्स हमें भरना है, और द इनवर्ट सप्लाई जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स हमें भरना है, मतलब टैक्स हमें भरना है। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन। पॉइंट नंबर 5, ऐसी सेल जिसके ऊपर टैक्स बनता नहीं है या फिर हमें भरना नहीं है, रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई या फिर एग्जेम्प्टेड सप्लाई। This point number 4 and point number 5 is all about output tax part. Coming to table number 6. From this table, we will start with input part. Input part include 3 tables. Table 6, table 7 and table 8. Table 6, you have to provide the details of input tax credit availed by you. आपने पूरे साल में कितना कितना क्रेडिट अवेल करा है, उसकी डिटेल्स इसके अंदर आती है। टेबल नंबर 6A, 6A एक गवर्नमेंट फील्ड डिटेल्स है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज बिकॉज इट सेज कि आपने पूरे साल में 3B का ये टोटल है, 3B के अंदर आपने इतने रुपए का क्रेडिट लिया है, दिस फिगर यू कैन नॉट चेंज, ये इसके अंदर फ्रीज फिगर है। नाउ इट विल आस्क फॉर द बाइफर्केशन ऑफ दिस फिगर्स, कि आपने पूरे साल में 3B का इतना क्रेडिट लिया है, तो यू जस्ट प्रोवाइड द बाइफर्केशन कि ये किस किस तरह का, किस किस नेचर का क्रेडिट है। व्हेन आई स्पोक कि नेचर क्या है, तो इसको डिवाइड कराता है, क्या ये इनपुट कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विसेज का है, और डिपेंडिंग ऑन द प्रोक्योरमेंट टाइप। मींस फर्स्ट पॉइंट सेज इनवर्ट सप्लाईज, परचेजेस के ऊपर क्रेडिट लिया है, बट ब्रैकेट में उसने कुछ और भी लिखा है, अदर देन इंपोर्ट्स एंड इनवर्ट सप्लाईज। इंपोर्ट को छोड़ के, अगर आपने बाहर से कुछ माल परचेज करा है उसको छोड़ के, या फिर ऐसी कोई सप्लाई को छोड़ के जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना था, ऐसी सप्लाईज के आपने कुछ क्रेडिट लिया है, तो आपको डिस्क्लोज करना है आईजीएसटी में, सीजीएसटी में, एसजीएसटी में, या फिर सेस आपने लिया है। इन दिस 3 पार्ट यू हैव टू क्लासिफाई। इनपुट इज, इन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सपेक्ट कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब जो एफए फिक्स एसेट्स खरीदा है, फिक्स एसेट्स पे कुछ क्रेडिट लिया है, तो इट इज एक्सप्लोर्ड इन द कैपिटल गुड्स। कोई भी सर्विसेज होती है उसको इनपुट सर्विसेज बोलते हैं। अदर देन कैपिटल गुड एंड इनपुट सर्विसेज, इट इज कॉल्ड एज इनपुट्स। सो इट हैज आस्क, एक आपने फिगर 3B में सिर्फ सिंगल फिगर दिया था, उसको इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड करवा लिया, इनपुट में, कैपिटल गुड्स में, इनपुट सर्विसेज में। नेक्स्ट पॉइंट सेज इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप पॉइंट नंबर बी दोबारा पढ़ेंगे तो इसने सारी सप्लाईज इंक्लूड करवा ली है, अदर देन इंपोर्ट एंड आरसीएम, जिसके ऊपर हमने आरसीएम में क्रेडिट लिया है, या फिर इंपोर्ट। तो 4B 6B को छोड़ दें, इन 2 पॉइंट को छोड़ दें, सारी सप्लाईज ऊपर कवर हो गई है। अब तो नीचे जितने भी वाले भी जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो आरसीएम या इंपोर्ट से रिस्पेक्टिव में ही होंगे। 6C सेज आरसीएम वाली सप्लाईज, आरसीएम सप्लाईज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगेन आरसीएम को 2 पार्ट में बाइफरकेट करवा लिया इसने, कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से कितनी ली है, एंड डी पार्ट से रजिस्टर्ड पर्सन से कितनी ली है। तो आरसीएम की सप्लाई को रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड 2 में बाइफरकेट करवा लिया।
एंड उसको दो में बाइफरकेट कराने के बाद इनपुट कितना है, कैपिटल गुड्स कितना है, इनपुट सर्विसेज कितना है, उसने में बाइफरकेट करवा लिया। आरसीएम कंप्लीट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट आता है इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स का क्रेडिट था, वो उसने यहाँ पर दिखा दिया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। जब ये फॉर्म बन के आया था तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था आरसीएम की सर्विसेज है, आरसीएम के ऊपर जितना टैक्स बनेगा, जितना हमने रजिस्टर रिवर्स चार्ज पे करा होगा, उसका क्रेडिट यहाँ पर हम डिस्क्लोज कर देंगे इन दिस 9 टेबल्स। बट नीचे एक लाइन आ गई अलग से, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। जब ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आया तो हम कंफ्यूज हो गए कि आरसीएम भी है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी है, तो ये दो पॉइंट अलग क्यों आ रहे हैं? बिकॉज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी आरसीएम की एक सर्विस है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज में हम क्रेडिट पे करते हैं, तो गवर्नमेंट ने अलग क्यों मांगा? गवर्नमेंट फर्दर क्लैरिफाइड कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का जो है वो उसका क्रेडिट आपको अलग से देना है, एंड अदर देन इंपोर्ट ऑफ सर्विस का जो रिवर्स चार्ज में आपने क्रेडिट अवेल करा है उसको आपने 6C और 6G में क्लासिफाई करना है। सो नाउ इफ आई अगेन से 6C, 6G एंड 6F टॉक्स अबाउट रिवर्स चार्ज प्रोक्योरमेंट जिसके ऊपर टैक्स का क्रेडिट हमने लिया है। 6C अनरजिस्टर्ड पर्सन, 6G रजिस्टर्ड पर्सन, 6F only import of service, 6E import of goods, 6B balance credit, 6G input tax credit received from ISG। as of now आप इसको जीरो छोड़ दिए। लास्ट इज अमाउंट ऑफ ITC reclaimed, दिस इज अगेन ऑफ नो यूज। कुछ क्रेडिट हमने पहले लिया था, हमने उसको रिड्यूस कर दिया, बाद में दोबारा ले रहे हैं, तो दैट पॉइंट इज कवर्ड अंडर अमाउंट ऑफ दिस H column, दिस इज ऑफ नो यूज as of now। The total of 6B to 6H comes in total 6I, कि आपने क्रेडिट का बाइफर्केशन दे दिया। नाउ व्हाट इज 6J? 6J इज द डिफरेंस बिटवीन आपने 3B में कितना लिया था, मतलब डिफरेंस बिटवीन द 3B में कितना लिया था माइनस कितने का आपने बाइफर्केशन दिया है। दैट शुड ऑलवेज बी जीरो, बिकॉज 3B में जो लिया हुआ क्रेडिट आप उसी को यहाँ पर फाइदर बाइफर्केट करके दिखा रहे हो। 6KLMN, दिस इज ऑफ नो यूज, दिस इज वाज ओनली ऑफ फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, आगे के लिए यूज नहीं है। देखो ट्रांजिशनल क्रेडिट जो हमारा वैट एंड सर्विस टैक्स का कोई क्रेडिट था, दैट वाज अंडर अर्लियर, दैट वाज अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड अंडर जीएसटी आल्सो, तो उस वो कोई क्रेडिट था बट 18-19 या फिर उसके ऑनवर्ड्स ऐसा कोई क्रेडिट अब आएगा नहीं। तो ये सब कॉलम से जीरो हो जाएंगे, या फिर गवर्नमेंट अगर फॉर्म डिवाइस करेंगे तो ये कॉलम्स हट जाएंगे सर यहाँ से। सो द 6J column, 6I column will be reflected in total ITC availed, जितना क्रेडिट हमने अवेल करा है वो यहाँ पर आ जाएगा। टेबल नंबर 6 we are done with it। टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 7 says रूल 37, रूल 39, रूल 42, रूल 43, रूल सेक्शन 17(5)। इन शॉर्ट अगर मुझे कुछ कहना हो, इन शॉर्ट अगर मुझे कुछ कहना हो तो दिस ऑल रूल्स सेज क्रेडिट रिवर्सल। क्रेडिट रिवर्सल मींस इफ यू रिमेंबर हमने कुछ ब्लॉक क्रेडिट की बात की थी, मोटर व्हीकल या फिर इंश्योरेंस या फिर फ्री इशू ऑफ गुड्स, ऐसा कोई क्रेडिट होता है तो हमें वो क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है। हम वी आर नॉट एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट ऑन दैट। सो इन दैट सिनेरियो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने 6 टेबल में वो वैसा क्रेडिट इंक्लूड कर लिया है तो आपको वहां से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने रूल्स दिए हुए हैं 37, 39, 42, 43, 17(5), रिवर्सल ऑफ ट्रान 1 एंड ट्रान 2 क्रेडिट। तो उसकी फिगर्स आपको डालनी होती है। लेट्स से मैंने मोटर व्हीकल का क्रेडिट ले लिया था, दैट वाज इंक्लूडेड इन टेबल नंबर 6, बट दैट वाज नॉट ऑब्लाइज्ड टू टेक, तो मैंने उसको रिवर्स कर दिया, तो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन सेक्शन 17(5). सिमिलरली हॉस्पिटल्स ने कुछ क्रेडिट ले लिया है, उन्होंने रिवर्स कर दिया है एग्जाम सप्लाईज के ऊपर, तो रूल 42। तो इस तरह से अलग अलग रूल्स बने हुए हैं, उसके अंदर उसको शो करना होता है। यहाँ पर आ जाएगा टोटल ऑफ ITC रिवर्स, कितना टोटल आ रहा है, एंड नेट ITC अवेलेबल। नेट ITC अवेलेबल मींस total availed in 6 table number 6 minus total reverse under table 7. So net ITC available. If you see what the government has done,
गवर्नमेंट हैज ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड दिस फॉर्म एंड टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 से उन्होंने नेट टैक्स पेबल कितना है वो आपका निकलवा लिया, और टेबल नंबर 6 और टेबल नंबर 7 के यूज से नेट आईटीसी कितना अवेल करा है आपने 3B में वो निकलवा लिया. इफ आई समराइज द टेबल नंबर 4 एंड द 4 to 7, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल 4 टेबल्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बाकी आप जितनी भी टेबल्स देखेंगे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. 4 to 7 इज 100% यूज टू कम टेबल्स, जिसके अंदर 4 और 5 में गवर्नमेंट ने आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी निकलवा ली आपसे, और टेबल नंबर 6 एंड 7 में इनपुट टैक्स कितना अवेल करा है उसकी डिटेल्स निकलवा ली. टेबल नंबर 8 is a just only a reporting table. When I say reporting table, it means आप इसमें फिगर डालेंगे लेकिन टैक्स पे करने में कोई लाइबिलिटी में इंक्रीज या डिक्रीज इस टेबल की वजह से नहीं आएगा. ये गवर्नमेंट ने सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए ये टेबल मंगवाई है आपने. बिफोर आई शुड कम ऑन टेबल नंबर 8, आई वुड लाइक टू क्लोज टेबल नंबर 9 फर्स्ट. टेबल नंबर 9 says tax payable paid through cash, paid through ITC. If you see paid through cash and paid through ITC part is already blocked. You cannot type. You can't change any value. Because गवर्नमेंट कह रही है जितना कैश आपने पे करा है, जितना आईटीसी आपने अवेल करा है, दिस फिगर्स कैन नॉट बी चेंज्ड. ये फिगर्स आपने 3B से हमने ऑलरेडी ली हुई है. वी कैन यू कांट चेंज दैट. यू कैन चेंज ओनली योर टैक्स पेबल. आप अपना टैक्स पेबल चेंज कर सकते हैं, और ये टैक्स पेबल कहाँ से आएगा? टेबल नंबर 5 के टोटल से आएगा, बिकॉज टेबल नंबर 5 में हमने टोटल निकाला था टैक्स पेबल का. फर्दर टेबल नंबर 7 इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसका जो टोटल आएगा आप इसके टोटल से मैच करेंगे, आईजीएसटी से, सीजीएसटी, एसजीएसटी से, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट क्रेडिट. टेबल नंबर 7 से पेड थ्रू आईटीसी, एंड नंबर 5 से टैक्स पेबल थ्रू कैश. 5 पेबल माइनस पेड, दीज आर फ्रीज फिगर पेड थ्रू कैश. ये पेड थ्रू कैश ऑलरेडी फ्रीज है, जितना आपने पूरे साल में पेमेंट करा वो आ रहा है. जब मैं टैक्स पेबल माइनस पेड ऑलरेडी डन, पेमेंट ऑलरेडी डन, पेड थ्रू आईटीसी ऑलरेडी अवेल्ड इन 3B, जो इसका डिफरेंस आएगा वो आपको गवर्नमेंट को एडिशनली जमा करवाना पड़ेगा. वो आपको एडिशनली जमा करवाना पड़ेगा बिफोर सबमिटिंग दी CSTN 9. अगर मैं अपनी एनुअल रिटर्न की बात करूं तो एज ऑन डेट जितनी एनुअल रिटर्न एप्लीकेबल है 90% पार्ट इन्हीं टेबल्स के अंदर आता है. 10% बैलेंस इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा एप्लीकेबल 90% केसेस में होती ही नहीं है. टेबल नंबर 4, 5, 6, 7, 9, ये 5 टेबल्स रेगुलरली एंड हर क्लाइंट में हमारे पास यूज होती हैं. दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. इसमें आपका कहीं क्वेरी है तो यू कैन डेफिनेटली पोस्ट इन द चैट बॉक्स. आई विल रिवर्ट वंस आई लुक ओवर दैट. Now I am coming to other tables, rest part of the GSTN 9. The rest part talks only for the reporting purpose. It do not affect my tax payable or tax paid part. It will not affect my ITC. It will not affect my paid in cash. It will not affect my payable part. But it is important for the government perspective. It is important for their analysis, for their information database. So they need some few other informations which they have asked as a part of GSTN 9. So we will start with table number 8, which is again going a very Dracula-like table in the coming time. What this table says. If you remember on the last day of the GST session, I told you about the GSTR 2A. 2A is a credit which is reflecting on my portal. Credit of what? Credit what has been filed by my suppliers for their supplies made to me. कि उन्होंने इतने इतने रुपए की सप्लाई करी है और उतने उतने रुपए का क्रेडिट मेरे को मिल सकता है. तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आईटीसी एज पर जीएसटी या 2A का फिगर उन्होंने डाल दिया कि आपके 2A में इतने रुपए का क्रेडिट वहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा है. आईजीएसटी में इतना है, सीजीएसटी में इतना है, एसजीएसटी में इतना है. अब आप बताइए कि आपने क्रेडिट कितना लिया है. कम लाइबिलिटी गवर्नमेंट विल नॉट रिड्यूस टू योर लाइबिलिटी. गवर्नमेंट इज ओनली आस्किंग फॉर द रिपोर्टिंग पर्पस. व्हेन आई से रिपोर्टिंग पर्पस, so it means government will not change your liability, but government using this information can send you notices later on to ask for information, to ask for the purchases you have made. तो गवर्नमेंट इससे क्या करती है, 2A का क्रेडिट ऑटो पॉपुलेटेड है, यू कैन नॉट चेंज
because this is based on the suppliers invoices. Point number 6b. Point number 6b says कि आपने टोटल कितना क्रेडिट लिया है. अगर आप देखेंगे आईटीसी एज पर सम टोटल ऑफ 6b एंड 6h. 6b एंड 6h के अंदर जो टोटल क्रेडिट आता है, 6h 0 था इफ यू रिमेंबर. 6b के अंदर वो टोटल आता है वो अदर देन आरसीएम एंड अदर देन रिवर्स चार्ज वाला आता है. तो गवर्नमेंट ने कहा आरसीएम जहां पर टैक्स आप खुद पे कर रहे हैं हमें उसको रिकंसाइल कराने की जरूरत नहीं है. जहां पर इंपोर्ट कर रहे हैं वहां पर भी टैक्स आप पे कर रहे हैं तो वो भी हमें रिकंसाइल कराने की जरूरत नहीं है. तो गवर्नमेंट ने जो रिकंसाइल करवाया वो अदर देन इंपोर्ट एंड अदर देन आरसीएम रिकंसाइल करवाया. तो फिर हमने दोबारा चेक करा क्या गवर्नमेंट ने टेबल नंबर ए पॉइंट नंबर ए जो फिल करा है क्या वो भी आरसीएम और विदाउट वाला है. तो इफ यू चेक आप अपना 2A डाउनलोड करेंगे तो ये जो फिगर्स आती हैं दीज ऑलवेज फिगर्स बीन आउट ऑफ अदर देन रिवर्स चार्ज. ये अदर देन रिवर्स चार्ज की फिगर है और अदर देन रिवर्स चार्ज का कितना क्रेडिट मैंने टेबल नंबर 6 में लिया है उसकी फिगर मुझे पॉइंट नंबर 6b में डालनी होती है. होप इट इज क्लियर टू यू टिल नाउ. आई एम मूविंग अहेड. पॉइंट नंबर 8c. I am taking an example to explain you point number 8c. For an example, I am filing this annual return for financial year 18-19. 31 मार्च 2019 के साल की मैं ये एनुअल रिटर्न फिल कर रहा हूँ. मेरे पास कोई इनवॉइस आया, सप्लायर से मैंने कोई परचेज करी. इनवॉइस की डेट थी 30 मार्च 2019, 30 मार्च 2019. सप्लायर ने अपनी एनुअल रिटर्न भरी, जीएसटीआर 1 भरी मार्च महीने की और इनवॉइस को शो करा अपनी रिटर्न के अंदर सेल इनवॉइस में. जब उसने शो करा तो मेरी जीएसटीआर 2A में मार्च महीने में वो आ गया. बट मेरे पास जो गुड्स रिसीव हुए थे वो अप्रैल में हुए थे. अप्रैल में हुए थे तो मैंने क्रेडिट लिया था अप्रैल के अंदर. तो यहाँ पर गवर्नमेंट की एक प्रॉब्लम हो गई. हम एनुअल रिटर्न एक साल की भरवा रहे थे. 6 टेबल नंबर 8A इसके अंदर जो ये फिगर्स आई ये फिगर्स आई एज पर 2A. बट यहाँ जो क्रेडिट था ये उतना ही था जितना इनवॉइसेस हमने ड्यूरिंग द ईयर रिसीव करे. ड्यूरिंग द ईयर हमने जितना मटेरियल रिसीव करा है. तो गवर्नमेंट ने कहा इसके अंदर एडिशनली वो वाला अमाउंट ऐड कर दीजिए जिसका क्रेडिट जो ऐसे इनवॉइसेस का क्रेडिट जो है तो 18-19 के बट आपने नेक्स्ट ईयर सितंबर तक अवेल करेंगे बिकॉज सितंबर इज द लास्ट डेट बिफोर विच यू आर रिक्वायर्ड टू अवेल द क्रेडिट. तो गवर्नमेंट ने क्या कहा total of credit reflecting in your 2A other than RCM and import has to be reconciled with the credit what you have paid during the year my plus credit reflecting in credit availed in next year for the invoices dated in current year. तो यहाँ से उन्होंने एक डिफरेंस निकाल लिया A माइनस बी प्लस सी. 2A में कितना क्रेडिट आ रहा है माइनस आपने इस साल में कितना लिया है माइनस आपने नेक्स्ट ईयर में कितना लिया है. जो यहाँ पर डिफरेंस आता है गवर्नमेंट इसी के बेसिस पे आपको नोटिस भेजती है बाद में. नोटिस क्या करने के लिए भेजती है नोटिस ये करने के लिए भेजती है कि आपका 2A में क्रेडिट कम आ रहा है और आपने क्रेडिट ज्यादा लिया है तो आप प्लीज इसको डिस्क्राइब कीजिए, रीजन बताइए इसके पीछे सो दैट दे कैन कॉट द अल्टीमेट कल्प्रिट. either you are the culprit because you have availed an extra credit or your supplier is culprit because he have not filed the GSTR 1. So in order to get this information government have asked you to file this table number 8. Point number E2H is again a very not that informative but it is again used. ITC available but not availed. अगर इसमें कुछ पॉजिटिव आता है तो गवर्नमेंट कहती है कुछ ऐसा आईटीसी है जो आपको लेना चाहिए था जो आप भूल गए हैं तो उसका अमाउंट आप लिखिए. आईटीसी अवेलेबल बट इनएलिजिबल. अब इसमें एक और प्रॉब्लम था मोटर व्हीकल का क्रेडिट. मैंने गाड़ी परचेज की थी, गाड़ी सेल करने वाले ने तो जीएसटीआर 1 में मेरा क्रेडिट दिखाया था जो इस 3 लाख की फिगर में इंक्लूडेड था बट मैंने वो क्रेडिट नहीं लिया है बिकॉज आई एम नॉट एलिजिबल टू टेक दैट क्रेडिट. सो वो 6B 8B 8C दोनों में ही नहीं आया होगा. और ये 3 लाख का पूरा 3 लाख लेट्स टेक एन एग्जांपल वो कार से रिलेटेड है तो आई हैव टू गिव द वैल्यू हियर कि इनएलिजिबल क्रेडिट मैंने कितना लिया है बेसिकली. तो इट विल हेल्प यू गवर्नमेंट कि आपने अगर पॉजिटिव आ रहा है तो गवर्नमेंट विल आस्क कि ये पॉजिटिव इतना ज्यादा क्रेडिट आप क्यों छोड़ रहे हैं. तो गवर्नमेंट ने इसका रीजन पूछ लिया अगर कोई डिफरेंस आता है या तो आप भूल गए हैं या वो इनएलिजिबल है. सो द स्प्लिट ऑफ दिस पॉइंट नंबर 8D इज गिवन इन द 8E एंड द 8F. टेबल नंबर 8G एंड 8H. 8G सेज कि आपने इंपोर्ट करे हैं गुड्स के ऊपर उसके ऊपर आईजीएसटी पे कितना करा है. आईजीएसटी पे कितना करा है दिस आर सिंपली सेइंग हमने आरसीएम का छोड़ दिया ऊपर, आरसीएम को हमने रिकंसाइल नहीं करा
हमने इंपोर्ट को रिकंसाइल नहीं करा। आरसीएम का गवर्नमेंट ने मांगा इसलिए नहीं, बिकॉज आरसीएम तो आपने ऑलरेडी जीएसटी में खुद पे करा है, और आप एनुअल रिटर्न में ऊपर पॉइंट नंबर 4 में डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने उसकी टेबल नंबर 8 में डिटेल नहीं मांगी। बट इंपोर्ट, इंपोर्ट के ऊपर आपने जो टैक्स जमा कराया था वो कस्टम अथॉरिटी को टैक्स जमा कराया था। तो गवर्नमेंट हियर वांट टू चेक कि आपने जितना पे करा है उतना ही क्रेडिट तो लिया है या नहीं लिया। तो 8G कॉलम ने गवर्नमेंट ने बोला आप ये बताइए कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना आईजीएसटी पे करा है कस्टम पे इंपोर्ट में, और उसको रिकंसाइल करवाया आईजीएसटी क्रेडिट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट, कि आपने कितना क्रेडिट अवेल करा है। ये फिगर्स आपकी टेबल नंबर 6 से आ गई, जहां पर अपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स की फिगर अलग से दी थी, और यहाँ पर इनका डिफरेंस निकल के आ गया G-H का। आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट, अगेन जो अगर डिफरेंस आएगा तो उसका कुछ वो पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं अवेल करा, ये स्किप हो गया है इसलिए। एंड टोटल आईटीसी टू बी लेफ्ट इज E plus F plus J. E says not availed, F says ineligible, J says not availed on account of import. This completion of table number 8. We are done with point number 4 to 9. I have opened point number 10 to 13. हमने एक इनवॉइस रेज करा 31 मार्च 2019 को। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर वो इनवॉइस आपने नेक्स्ट ईयर में जाके कुछ अमेंड करा है, नेक्स्ट ईयर में जाके प्लस करा है, नेक्स्ट ईयर में जाके माइनस करा है, लाइबिलिटी बढ़ाई है, लाइबिलिटी कम करी है, तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी आप यहाँ पर हमें बता देते हैं। वाई गवर्नमेंट क्यों पूछ रही है? गवर्नमेंट ये इसलिए पूछ रही है सो दैट नेक्स्ट ईयर ऑडिट जब करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये वैल्यू चेंजेस लास्ट ईयर के रिटर्न्स की वजह से हुई है, एंड लास्ट ईयर में उसको एक रिकंसिलेशन के लिए पॉइंट मिल जाएगा। तो 18-19 में अगर आप रिटर्न भर रहे हैं तो आपने सितंबर 19 तक, अप्रैल 19 टू सितंबर 19 में कुछ अमेंडमेंट करी है विच लीड्स टू चेंज इन द टैक्स फिगर्स। तो प्लस की हो रहा है तो यहाँ पर डालिए, माइनस हो रहा है तो यहाँ डालिए। आउटपुट पार्ट, इनपुट पार्ट रिवर्सल करा है या आईटीसी लिया है तो यहाँ पर डालिए। टेबल नंबर 10-11 आउटपुट पार्ट बढ़ने या आउटपुट पार्ट कम होने, 11 नंबर टेबल 10 नंबर से बढ़ने की वजह से लाइबिलिटी अप्रैल टू सितंबर में जो अमेंडमेंट करी उसकी वजह से, 11 से अमेंडमेंट की वजह से जो लाइबिलिटी कम हुई है तो उसकी वजह से आपकी लाइबिलिटी कितना पेएबल पार्ट पड़ा है और कितना आपने पे करा है नेक्स्ट ईयर में, उसको रिपोर्ट करना होता है यहाँ पर। Point number 15 to 18 is not very important, but I am briefing you each of the point. Point number 15 says during the year जीएसटी डिपार्टमेंट से आपको कोई डिमांड का डिमांड्स आई है क्या, या कोई रिफंड आया है क्या? जिस ईयर में आप एनुअल रिटर्न भर रहे हैं, जिस ईयर की भर रहे हैं, उस साल में कोई डिमांड नोटिस आया है या कोई रिफंड आया है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ देनी होती है। टोटल रिफंड क्लेम कितना था आपका, टोटल गवर्नमेंट ने कितना सैंक्शन करा है, कितना रिजेक्ट करा है, और अभी रिफंड कितना पेंडिंग है, टोटल डिमांड ऑफ टैक्सेस कितनी है, आपने उस टैक्सेस को पे कितना करा है, टोटल डिमांड्स पेंडिंग आउट ऑफ ईवर। सो उन्होंने रिफंड और डिमांड की इंफॉर्मेशन मांगी है फॉर देयर डाटाबेस ऑनली। टेबल नंबर 16 इनपुट पार्ट में, इनपुट पार्ट में आपने कंपोजिट टैक्स पेयर से कितनी सप्लाईज रिसीव करी है, डीम्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 143 जॉब वर्क रिलेटेड सप्लाईज होती हैं बेसिकली, वो कितनी करी है, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस बट नॉट रिटर्न, ऐसी सप्लाईज कितनी करी है उनकी डिटेल्स वो मांग रहे हैं। अगेन विच इज अ वेरी लेस यूज दिस टेबल्स आर, and for your information these tables has been exempted for financial year 17-18 and 18-19, so you are not required to file this table for 17-18 and 18-19, but I am explaining as it is a part of course. 17 टेबल, 17 टेबल सेज कि आपने एचएसएन रिलेटेड बताइए, एचएसएन वाइज समरी बताइए। व्हाट एचएसएन वाइज, इफ यू रिमेंबर हमने जीएसटीआर 1 जब फाइल करी थी हमने एचएसएन वाइज डिटेल दी थी कि हमने इस एचएसएन के अंदर
इतने रुपए की सप्लाईज करी हैं, इतना जीएसटी है, इतना सीजीएसटी है। तो सिमिलरली यहाँ आपको एचएसएन वाइज डिटेल देनी होती है। एक एचएसएन के अंदर आपने पूरे साल में कितने, कौन सा यूकीसी का मटेरियल है, कितनी क्वांटिटी में सेल करा है, क्या उसकी टैक्सेबल वैल्यू थी, रेट ऑफ टैक्स क्या था, इंटीग्रेटेड टैक्स कितना लगा था उसके ऊपर, सेंट्रल टैक्स कितना लगा था, स्टेट टैक्स कितना लगा था, और सेस कितना लगा था। एचएसएन वाइज डिटेल यू हैव टू गिव हियर। द टोटल ऑफ पॉइंट नंबर 17 should reconcile with your table 5. Table 5 is an outward supply. Table 17 is an outward supply. 5 is equal to 17. 5 is equal to 17. And table number 6 should be equal to table number 18. 6 says इनपुट में जो रिसीव करा है वो कौन कौन से एचएसएन का मटेरियल आपने रिसीव करा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनुअल रिटर्न। ऑल द टेबल्स आई हैव एक्सप्लेन टू यू। इसमें लास्ट में आप यहाँ पर लास्ट में जैसे ही आप डिटेल्स फिल कर देंगे, प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे, देन यू विल बी आस्क्ड टू पुट योर DSC or the OTP and your annual return will get filed. So by this I am closing the GSTR 9. Till now, if you have any queries and concern on the GSTR 9, please drop me on the chat box. I am waiting for another 1 minute for the GSTR 9 queries. Then I will go and tell you about the GSTR 9C. It is very important because it is going to be used in your practical life day by day. I would like to clear all your doubts. If you have any queries, you can open your mic or you can type it on the chat box. A question I have received is there is a difference in books and 3B, how it should be cleared. My first point on this regard is what sort of difference it is. It is practically case to case basis we have to deal with the difference. For an example, अगर कुछ आउटपुट में आप टैक्स लायबिलिटी सेल शो करना भूल गए हैं, you can directly show it in table number 4 and 5 and pay the liability in table number 9. This is first option. Second option, आप GSTR 9 में कुछ मत करिए, आप GSTR 9 के अंदर समरी प्लस करके दिखा दीजिए GSTR 3B या GSTR 1 की। आप कुछ मत, बुक्स को भूल जाइए एज ऑफ नाउ। एंड जब डिफरेंस बात कर रहे हैं बुक्स की और 3B की, मैं 3B यहाँ से हटा देता हूँ, बुक्स और GSTR 9 की डिफरेंस खड़ा हो जाएगा। फिर वहां पर बुक्स और 9 में जो डिफरेंस आएगा उसको हम GSTR 9C में भी शो कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। और वहां पर जो लाइबिलिटी आएगी आप वहां पर भी डायरेक्टली पे कर सकते हैं। So you have two options. One, you should disclose that supply in your GSTR 9 if it is an output part and pay the tax in GSTR 9 itself before giving it the details to your auditor, or let the auditor pick that point. You should file your GSTR 9 as like a summary of GSTR 3B and GSTR 1, and if the auditor picks that point and it will disclose it in the difference part, the difference of rupees itna is there in your tax liability. After reporting that, you should pay your tax liability using DRC 03 challan. The due date of GSTR 9 and 9C is same as per government timeline, but 9C could never be filed until unless you have filed the GSTR 9. GSTR 9C can be filed only and only after GSTR 9 is filed. While filing GSTR 9C, अगर आप देखेंगे कि कुछ 9C के फिगर्स हम GSTR 9 से भी पिक करेंगे। First GSTR 9, then 9C, correct. If the case is reversed, I didn't understand your query. What is the case is reversed? Please clarify. I will explain. What is the query? The case is reversed.
FY 18-19 due date for GST 9 9C is 30th June. 30th June. It GSTR 9 and 9C 30th June. 9C is the ITC is increasing, then how it will be dealt with? If the ITC is increasing, then how to dealt with it? You mean to say your 3B in your you have a availed excess 3B credit in your 3B, correct? You have availed excess credit in your 3B and you want to reduce it. Okay, okay, okay. So you can do one thing. Again, you have one option to do with either reverse the credit, either रिवर्स द क्रेडिट इन टेबल नंबर, अदर रिवर्सल्स में आप यहाँ पर डिस्क्लोज कर दीजिए. उससे होगा क्या, आप यहाँ पर रिवर्स करेंगे टेबल नंबर 9 के अंदर पेड थ्रू आईटीसी का पार्ट चेंज नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द लायबिलिटी व्हाट यू हैव ऑलरेडी डिस्क्लोज. सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको DRC 03 का चालान साथ में फिल करना पड़ेगा, प्रोवाइडिंग टू योर ऑडिटर की मैंने लायबिलिटी कम करी है. जब टेबल नंबर 7 से और आईटीसी पार्ट को वो रिकंसाइल करेगा, ही विल फाइंड आउट द डिफरेंस एंड यू विल शो इन द DRC 03 चालान कि मैंने इतने रुपए की लायबिलिटी फर्दर पे कर दी है. फर्स्ट ऑप्शन इज दिस. सेकेंड ऑप्शन, आप GST 9 को अकॉर्डिंगली फिल कर दीजिए. जब हम 9C में आएंगे तो वहां पर रिकंसिलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आएगा, तो वहां पर आप बुक्स का क्रेडिट और 3B का क्रेडिट दिखा सकते हैं कि बुक्स में क्रेडिट कम है, 3B में क्रेडिट ज्यादा अवेल करा है, और वहां पर वो डिफरेंस जो आएगा वहां पर वो पे कर सकता है. Any more queries? Hope the query is resolved, Kanika. What is your query in Tran 1 and Tran 2? When we use, so basically Tran 1 and Tran 2 is पहले जो हमारा सर्विस टैक्स का, वैट का, VAT का, कुछ क्रेडिट सेल टैक्स की लास्ट जो रिटर्न भरी थी हमने 30 जून 2017 की, वो क्रेडिट अब आगे तो यूज हो नहीं सकता, बिकॉज देयर इज नो मोर सर्विस टैक्स, देयर इज नो मोर VAT. तो गवर्नमेंट ने एक फॉर्म भरवाया था, ट्रांजिशन फॉर्म. ट्रांजिशन मीन्स वन रिजीम टू अदर रिजीम. ट्रांजिशन 1, ट्रान 1 एंड ट्रान 2. ट्रान 1 में फॉर्म में क्या डिस्क्लोज करा था क्लाइंट ने कि मेरा इतना सर्विस टैक्स का क्रेडिट है जो मैं GST में लेके जा रहा हूँ. तो उस डिटेल को हम ट्रान 1 फॉर्म का जो क्रेडिट हम यहाँ पर लेके आए हैं उसकी डिटेल्स को टोटल को हमें यहाँ पर टेबल नंबर 6 में शो करना होता है. And Tran 2 is also a part of Tran 1 type. I will not explain it here because it is going to mess for all the participants. Tran 2 is based upon excise related documents. Current date में Tran 1 and Tran 2 का no use. There is no practical use of this. This is an old form. Government used to amend this form. Any more queries? So we'll take rest here. If you have any queries, we'll keep on posting here in the chat box. I will revert. I am coming to the GST and 9C part. I am going back to the dashboard. Services, returns, annual return. We were discussing 18-19. हमने क्या देखा, एनुअल रिटर्न में दो ऑप्शन है, प्रिपेयर ऑफलाइन, प्रिपेयर ऑनलाइन. आइदर डाउनलोड द एक्सेल फाइल, fill the details there, upload it in prepare offline, the figures got reflected in prepare online, file the return, or directly put the details in prepare online and file the return. Now we come to reconciliation statement GST and 9C. Initiate e-filing. What it is written on the top? To prepare and file form GST and 9C, filing of GST and 9 is mandatory. Please file GST and 9 and then try again. It will not open until unless GST and 9 is filed. So we can't do anything. बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें होता क्या है. फॉर्म विल नॉट ओपन हियर, और
यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन का ऑप्शन 9C में ऑनलाइन फॉर्म नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा, यहाँ से प्रिपेयर ऑफलाइन आएगा। वाई प्रिपेयर ऑफलाइन आएगा? बिकॉज 9C इज अ फॉर्म जो ऑडिटर से साइन होके आएगा। गवर्नमेंट ने एक एक्सेल शीट बनाई है, ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर वो एक्सेल शीट में सारी वर्किंग करेगा और अपना डिजिटल सिग्नेचर उस एक्सेल शीट में लगाएगा। जैसे ही डिजिटल सिग्नेचर अपनी एक्सेल शीट में लगाएगा, एक जेसन फाइल बन के आएगी। वो जेसन फाइल गवर्नमेंट कह रही है कि आप यहाँ पर अपलोड कीजिए प्रिपेयर ऑफलाइन में जाकर। जैसे आप 9 भर देंगे तो यहाँ प्रिपेयर ऑफलाइन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। प्रिपेयर ऑफलाइन में जाके वो फाइल आपको अपलोड करनी होगी, तो फाइल ऑटोमेटिकली इनिशिएट ई फाइलिंग में नजर आएगी। आपने वंस द फाइल इज अपलोडेड तो आप इनिशिएट ई फाइलिंग में क्लिक करेंगे और वहां पे अपनी ऑडिटेड साइंड बैलेंस शीट, साइंड P&L अकाउंट अपलोड करेंगे एंड अपने डिजिटल सिग्नेचर लगा के रिटर्न फाइल कर देंगे। होप इट इज क्लियर टू प्रोसेस कि कैसे फाइलिंग होती है। 9 फिल कर दिया। 9C के लिए आपने इनिशिएट एक्सेल फाइल दी अपने ऑडिटर को। एक्सेल फाइल में ऑडिटर ने डिटेल फिल करी। एक्सेल फाइल के अंदर उसने अपने डिजिटल सिग्नेचर लगाए। एक जेसन फाइल बनेगी उससे। जेसन फाइल को प्रिपेयर ऑफलाइन में अपलोड करा। देन आप इनिशिएट ई फाइलिंग पे गए। इनिशिएट ई फाइलिंग पे आपने अपनी बैलेंस शीट अटैच करी, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अटैच करा, साइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, साइंड बैलेंस शीट, एंड देन आपने उसके अंदर अपने डिजिटल सिग्नेचर लगा के 9C फिल कर दिया। So it is all about the procedure of filing the return. Now what is the part, what is there in the GST and 9C, वो अभी हम चेक कर लेते हैं। 9C का एक्सेल जो होता है वो पोर्टल पे अवेलेबल है, डाउनलोड्स के अंदर ऑफलाइन टूल, GST and 9C ऑफलाइन टूल, GST and 9C ऑफलाइन टूल। तो यहाँ पर जाके आप एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ नाउ आई एम शोइंग यू द एक्सेल फाइल ऑफ 9C। This is the form GSTR 9C, ऑफलाइन टूल है, एक्सेल फाइल है। मैनेजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू फिल दिस फॉर्म, दिस फॉर्म हैज टू फिल बाय द ऑडिटर ओनली। ऑडिटर इसको फिल करेगा। इसके अंदर अलग अलग टैब्स बनी हुई है, इफ यू सी विद मी, पॉइंट 2, पॉइंट 2, 5, 6, 7, पॉइंट 8, पॉइंट 3, अगेन उसके पास पॉइंट 4। so the whole table, the whole GSTN 9C is divided into 5 parts. First part says GSTN trade name, financial name, all necessary information, क्या नाम है, GSTN कौन सा है, कौन से साल की भर रहे हो आप रिटर्न, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है। मेन रिटर्न स्टार्ट्स विद पॉइंट नंबर 5। output part is out point number 2. It goes till point number 5, 6, 7, 8. Input part starts with point number 3. Sorry, point number 12. Input part says the point number 12, 13, and 14 is the input part, and point number 15 is the 16 is the for last balance payable, tax payable. I will explain you table by table what is happening in this 9 and 9C. We'll start with point 25. मेरे साथ रहिएगा, अदरवाइज ये फॉर्म पता भी नहीं चलेगा कब कंप्लीट हो जाएगा और कुछ समझ भी नहीं आएगा। So it is very important to be concentrated on especially this sheet. This is the whole basically game of the GST in regard to this annual return and annual return reconciliation settlement. अगर ये जो शीट है अगर आपने समझ ली है इसको एक से ढंग से, तो आपको एनुअल रिटर्न में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस पॉइंट बाय पॉइंट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, सो प्लीज स्टे विद मी। I will explain you how to do the reconciliation of books of accounts with your GSTR 9. I'm not saying GSTR 1, I'm not saying GSTR 3, I'm saying GSTR 9. So we'll start with the first point, turnover, sales. Sales as per audited financial statement for the state UT. GSTR 9C एक पर्टिकुलर स्टेट का भर रहे हैं, हम पर्टिकुलर GST का भर रहे हैं। अगर किसी कंपनी के 4 GST स्टेट्स में रजिस्टर्ड है तो यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल 4 GSTR 9 एंड 4 GSTR 9C। तो फर्स्ट पॉइंट सेज कि टर्नओवर कितना है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो आपके बैलेंस शीट P&L साइन हुए हैं
उसके अंदर कितनी सेल आ रही है उस पर्टिकुलर जीएसटी की। तो सबसे पहले इसके अंदर जब किसी वैल्यू डालेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वो बनता है कंपनी का, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। उसके अंदर चारों जीएसटी अलग अलग होते हैं, सेम होते हैं, इंक्लूड होते हैं। उसको सबसे पहले ऑडिटर जब काम शुरू करेगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितनी भी सेल दी हुई है उसको चार पार्ट में बाइफरकेट करेगा, चार स्टेट्स में बाइफरकेट करेगा, चार जीएसटी में बाइफरकेट करेगा। तो उस जीएसटी की जितनी भी सेल होगी उस अमाउंट को यहाँ पर वो डालेगा, उस सेल्स को यहाँ पर डालेगा। नेक्स्ट इज अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। प्लीज मेरे साथ रहिएगा। अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आपने ऊपर टर्नओवर के अंदर कुछ ऐसी रेवेन्यू इंक्लूड करी हुई है जिसके ऊपर आपने टैक्स पे कर चुके हैं। लेट मी गो यू टेक यू अगेन विद दिस पॉइंट। अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओके, अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, सो दे मीन टू से आपकी बुक्स के अंदर कोई ऐसा रेवेन्यू आ रहा है जिसकी बिलिंग ओपनिंग में नहीं हुई थी, वो यहाँ पर ऐड करवाना चाहता है उस चीज को। ऐसा रेवेन्यू जिसका इनवॉइस इशू नहीं हुआ था, जो बैलेंस शीट में आपके अनबिल्ड रेवेन्यू में आ रहा था। फॉर एन एग्जाम्पल भारतीय एयरटेल टेलीफोन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आपका बिल आता है 14th ऑफ अप्रैल को, एवरी मंथ साइकिल इज 14th। आपने लास्ट बिल उसने 14th मार्च को रेज करा था, उसने बैलेंस शीट क्लोज करी 31 मार्च 2019 की। 31 मार्च 2019 की जब बैलेंस शीट क्लोज करी तो उसके ऑडिटर ने बोला 31 मार्च तक का, मतलब लास्ट 14 मार्च से लेके 16 31 मार्च तक का जो आपका रेवेन्यू है, जो एक्रूड है, इनकम है, उसको आप अपनी रेवेन्यू में लेके जाइए। रेवेन्यू में लेके जाइए बिकॉज हम पूरे साल की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। बट जीएसटी ने उसका टैक्स नहीं मांगा बिकॉज उसकी साइकिल है 14th ऑफ अप्रैल को, वो 14th अप्रैल को इनवॉइस रेज करेगा। तो ऐसा रेवेन्यू मेरी पीएनएल में तो आ रहा है, मतलब मेरी ऊपर टॉप लाइन फिगर में तो आ रहा है, बट नीचे नहीं, उसके ऊपर जीएसटी पे नहीं करा हुआ मैंने। तो ऐसे रेवेन्यू को गवर्नमेंट ने पहले पॉइंट नंबर एच में, आप प्लीज पॉइंट नंबर एच में आइएगा, पॉइंट नंबर एच में गवर्नमेंट ने लेस करवा लिया अनबिल्ड रेवेन्यू एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इसको यहाँ पर लेस करना होता है और सिमिलरली नेक्स्ट ईयर में जाके उसको ऐड करना होता है। पॉइंट नंबर बी एंड पॉइंट नंबर एच, दे बोथ आर रिलेटेड। क्लोजिंग में जो रेवेन्यू मेरा पार्क हुआ है भारतीय एयरटेल का, जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू पीएनएल में आ रहा है, उसको मैं लेस करूंगा और ओपनिंग में मैं ऐड कर दूंगा उसको। पिछले साल का होगा तो ऐड कर दूंगा, मतलब 18-19 में मैं 1 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक का जो रेवेन्यू का उसको मैं ऐड कर दूंगा। अनबिल्ड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में मैं 15 मार्च से लेके 31 मार्च 2019 का जो रेवेन्यू होगा उसको लेस कर दूंगा, बिकॉज इस पीरियड के रेवेन्यू के ऊपर टैक्स मैं अगली साल पे करूंगा। होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। आई एम गोइंग अहेड। पॉइंट नंबर सी एंड पॉइंट नंबर आई, बोथ आर लिंक्ड टू ईच अदर। अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एडवांसेस के ऊपर आपने कुछ टैक्स पे कर दिया है, एडवांसेस के ऊपर आपने अगर कुछ टैक्स पे कर दिया है तो आप ऐसे एडवांसेस को इंक्लूड कर लीजिए। ऐसे एडवांसेस अगर पिछले साल के हैं जिसके ऊपर रेवेन्यू आपने इस ईयर में अर्न करा है, ऐसे एडवांसेस को लेस कर लीजिए। तो गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है, मैं आपको दोबारा इस शीट के ऊपर मीनिंग समझाता हूँ। हमने शुरू कहां से करा, हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सेल्स से शुरू करा। हम जाना कहाँ चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं जो सेल्स मैंने जीएसटीआर 9 में दिखाई है। गवर्नमेंट कह रही है कि बुक्स में जो आपने सेल दिखाई है और जो आपकी सेल जीएसटी रिटर्न में आ रही है उसमें काफी डिफरेंसेस होंगे। रीजंस हो सकते हैं उसके काफी डिफरेंसेस के, क्यों? बुक्स चलती है एक्रूअल कंसेप्ट में और जीएसटी चलता है अपने टाइम ऑफ सप्लाई से। उस डिफरेंसेस को या तो डिफरेंसेस प्लस करने होंगे या डिफरेंसेस माइनस करने होंगे। तो ऐसे डिफरेंसेस को प्लस या माइनस करने का उन्होंने ये शीट दिया हुआ है B2Q कॉलम, ओ कॉलम। ऐसे डिफरेंसेस जहां वो उन्होंने बताया नेचर वाइज, नेचर आप प्लस या माइनस करते रहिए और आप बुक्स के टर्नओवर से अपनी जीएसटी के टर्नओवर पे आ जाइए। जैसे ही आप जीएसटी के टर्नओवर पे आ जाएंगे प्लस या माइनस करने के बाद,
फिर वो उस टर्नओवर को कंपेयर कराएगा जो आपने टर्नओवर रिपोर्ट कराया है जीएसटी इन रिटर्न, एनुअल रिटर्न के अंदर। इफ देर इज एनी डिफरेंस इन दैट टर्नओवर, वो कहेगा उसके ऊपर आप टैक्स पे कीजिए। अगर कम होगा देन वो अदर बात। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, टर्नओवर निकालिए अपना बुक्स का, उसको प्लस या माइनस करिए ऐसे आइटम गवर्नमेंट ने कहा टर्नओवर निकालिए अपना, टर्नओवर के अंदर प्लस या माइनस करिए ऐसे आइटम्स जहां पर आप क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, बेसिकली जीएसटी रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को, और ऐसे टर्नओवर जो टर्नओवर निकल के आएगा उसको कंपेयर करिए टर्नओवर जो आपने रिपोर्ट करा है एनुअल रिटर्न के अंदर, और जो डिफरेंसेस होगा उसके ऊपर टैक्स पेबल या पेड आप दिखा दीजिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बुक्स के टर्नओवर को अपने जीएसटी टर्नओवर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ऐसा रेवेन्यू जिसकी बिलिंग इस साल में हुई है उसको मैं ऐड करूंगा, ऐसा रेवेन्यू जिसकी बिलिंग नेक्स्ट ईयर में होगी उसको मैं लेस करूंगा। गवर्नमेंट का ये फॉर्मेट है। यहाँ पर अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पर प्लस या माइनस लिख के आता है कि क्या चीज प्लस हो रही है क्या चीज माइनस हो रही है। इस फॉर्मेट में एक्सेल में नजर नहीं आ रहा है वो चीजें। सिमिलरली एडवांसेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मैं ऐड करूंगा, और एडवांसेस को जिसके ऊपर टैक्स मेरे को इस साल में पे करना नहीं करना है उनको मैं लेस करूंगा। so they both point are related to each other. So I am done with this point. Next comes the deemed supply under schedule 1. Please listen me very carefully. Deemed supply मतलब, as I told you, मैं ये जो जीएसटी रिटर्न फिल कर रहा हूँ ये एक पर्टिकुलर जीएसटी की कर रहा हूँ, नॉट फॉर द कंपनी। जब मैं किसी जीएसटी की रिटर्न भर रहा हूँ तो ऐसी कुछ सेल्स मैंने अपने ही जीएसटी दूसरे कंपनी के जीएसटी में करी होगी जो मेरी टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ब्रांच ट्रांसफर, डाबर इज लोकेटेड इन हरियाणा, डाबर इज लोकेटेड इन पंजाब, हरियाणा ने कुछ मटेरियल पंजाब को भेजा, वो मेरी बुक्स की फाइनल बुक्स की सेल्स में नहीं आ रहा होगा, बट डाबर हरियाणा की टर्नओवर में आ रहा होगा। तो ऐसे टर्नओवर को उन्होंने प्लस करवाया। स्टॉक ट्रांसफर, ब्रांच ट्रांसफर का कुछ सेल है तो वो आप डीम सप्लाई के अंदर ऐड करेंगे, उसको डीम सप्लाई बोलते हैं। टर्म नंबर ई एंड एफ आर मोर और लेस सिमिलर। क्रेडिट नोट और ट्रेड डिस्काउंट। क्रेडिट नोट्स क्या होते हैं, क्रेडिट नोट रेज करने की एक डेट होती है, क्रेडिट नोट रेज करने की डेट होती है कि आप सितंबर तक, सॉरी आई विल टेक यू दिस पॉइंट विद यू अगेन। Credit note issued after the end of financial year but reflected in the annual return. This point, please listen me very carefully. This point is of no use. ये गवर्नमेंट ने गलत फॉर्मूला फॉर्मेट डाल दिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बाद में क्लैरिफाई करा था, ये वैल्यू हरदम जीरो ही आएगी इस पॉइंट के अंदर। या अगर आप नए फॉर्मेट्स आएंगे तो ये पॉइंट वहां से हट जाएगा। ये पॉइंट गलत डला हुआ है फॉर्मेट्स के अंदर। ऑल इंडिया में ये वैल्यू जीरो ही गई है हर क्लाइंट के लिए। तो दिस पॉइंट इज ऑफ नो यूज। हम इस क्लाइंट को रेफर नहीं करेंगे, ये गलत लैंग्वेज यूज होती है यहाँ पर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेसिफिकली गिवन इन देयर टेक्निकल गाइड कि यहाँ पर ये जीरो आएगा। I am going forward and taking another point, trade discount. Trade discount in the audited financial statement but are not permissible under GST. ऐसा कोई डिस्काउंट आपने दिया है जिसके ऊपर, लेट्स टेक एग्जांपल, मैंने एक मैगी सेल करी, आई एम टेकिंग द फर्स्ट एग्जांपल, 12 रुपीज की एक मैगी सेल करी, 12 रुपीज की मैगी सेल करी, मैंने उसको 12 रुपीज पार्टी से अभी रिसीव नहीं किए थे, क्रेडिट में सेल करी थी और मैंने जीएसटी अपना जमा करा दिया था। बाद में वो स्टॉकिस्ट मेरे पास आता है और कहता है मैंने आपसे इतनी सारी मैगीज खरीदी है, गिव मी अ डिस्काउंट ऑफ 2 रुपीज और 1 रुपी। तो ऐसे डिस्काउंट जो मैं उसको बाद में दे रहा हूँ, और तो मैं अपनी लेट्स से मैंने उसको 1 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, 1 रुपीज का जब मैंने उसको डिस्काउंट दिया होगा तो मैंने अपनी सेल्स कम कर दी होगी, सेल्स मैंने रिड्यूस कर दी होगी। तो ऊपर जो फिगर आ रही होगी पॉइंट नंबर ए के अंदर वो 11 रुपीज आ रही होगी, बट मेरे को जीएसटी 12 रुपीज पे करना है। तो गवर्नमेंट इज सेइंग कि ऐसा कोई ट्रेड डिस्काउंट जो आपने ऊपर सेल से कम करा हुआ है बट जिसके ऊपर जीएसटी आपने पे करा है, तो ऐसे ट्रेड डिस्काउंट को आप यहाँ पर ऐड कीजिए। यहाँ पर मैंने उसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट इज टर्नओवर फ्रॉम अप्रैल 17 टू जून 17। दिस इज अगेन नॉट एप्लीकेबल बिकॉज जून जुलाई से जीएसटी आया था। पीएनएल जो बने थे वो पूरे साल के बने थे, तो गवर्नमेंट ने सब्ट्रैक्ट करवाया था कि 3 महीने का टर्नओवर आप लेस कर दीजिए। तो अगेन दिस इज ऑफ नो यूज फॉर 18-19 onwards. नेक्स्ट इज क्रेडिट नोट।
प्लीज लिसन मी केयरफुली। क्रेडिट नोट देने की एक टाइम है। मैंने अगर ऐसा कोई क्रेडिट नोट दिया है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं 18-19 की बात कर रहा हूँ। 18-19 का क्रेडिट नोट मैं सितंबर तक इशू कर सकता हूँ। बट सितंबर के बाद अगर मैंने कुछ क्रेडिट नोट दिया है, तो उससे मैं अपनी जीएसटी की लायबिलिटी कम नहीं कर सकता। मैं सिर्फ अपनी टैक्सेबल वैल्यू कम कर सकता हूँ। मेरी सेल तो कम हो जाएगी, पर मैं जीएसटी कम नहीं कर पाऊंगा। बट मेरी सेल्स कम हो जाएगी तो ऊपर टर्नओवर भी मेरा कम आएगा, बट जीएसटी की लायबिलिटी कभी कम नहीं हुई। तो ऐसे क्रेडिट नोट्स जिसकी वजह से आपकी सेल्स कम हो रखी है बट टर्नओवर कम नहीं हो सकता है, तो ऐसे क्रेडिट नोट्स की वैल्यू आपको ऐड करनी है टू इंक्रीज योर जीएसटी टर्नओवर। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एससीजेड यूनिट टू डीटीए यूनिट। एससीजेड यूनिट मैंने क्या बताया था, एससीजेड यूनिट इज लाइक आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया से इंडिया में कुछ सामान मंगाते हैं। ये जो पॉइंट है, ये स्पेसिफिकली पॉइंट जो है, ये सिर्फ एसईजेड वालों के लिए है, क्योंकि एसईजेड वाले आफ्टर है तो इंडिया में, उनको भी अपनी जीएसटी रिटर्न भरनी है। ये सिर्फ पॉइंट सिर्फ एसईजेड में जो यूनिट्स हैं उन्हीं के लिए है। रेस्ट जितनी कोई कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर ये पॉइंट नॉट एप्लीकेबल है। एसईजेड यूनिट की सेल्स, एसईजेड यूनिट ने कुछ सेल्स करी है, तो वो सेल्स यहाँ पर आती है। आई एम नॉट टेकिंग यू विद दिस पॉइंट, बिकॉज जब हम एसईजेड यूनिट से डीटीए में कुछ मटेरियल मंगाते हैं, तो इट इज ट्रीटेड लाइक मटेरियल रिसीव फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, और उसके ऊपर हमें कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है। तो एसईजेड यूनिट जब कोई ऐसी मटेरियल सेल करती है डीटीए यूनिट को, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाती, बिकॉज वो समझते हैं कि हम आउटसाइड इंडिया में हैं, तो हम डीटीए को बेच रहे हैं, मतलब अदर देन इंडिया, अदर देन एसईजेड यूनिट को बेच रहे हैं, तो हमें जीएसटी नहीं लगाना है। तो उनके टर्नओवर के अंदर बट वो फिगर इंक्लूडेड होगी, 100 रुपए का ऐसा सामान जो उन्होंने डीटीए को बेचा है, वो इंक्लूडेड होगा, बट वो जीएसटी में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर वो वैल्यू लेस होती है एसईजेड के लिए, बट हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं वो चीजें। टर्नओवर फॉर द पीरियड अंडर कंपोजिशन स्कीम, आप ड्यूरिंग द ईयर है, एक साल काम कर रहे हैं, पहले आप छोटे एसएससी थे, एक स्कीम के अंदर आती है कंपोजिशन स्कीम। आधा टर्नओवर आपने वहां डिस्क्लोज करा हुआ है, और आधा टर्नओवर आप नॉर्मल स्कीम में डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो वो टर्नओवर यहाँ पर आपको शो करना होता है, वो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। एडजस्टमेंट इन टर्नओवर अंडर सेक्शन 15 एंड रूल्स एंड देयर अंडर, ये बेसिकली पॉइंट्स इज ऑफ नो मोर दैट मच रेलिवेंट पॉइंट। ये बिल टू शिप टू मॉडल या फिर बाटर एक्सचेंज होता है, वहां पर ये वैल्यूज आती हैं। जनरली बाटर एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन फ्लक्चुएशन, 100 रुपए की सेल्स थी जब आपने बिल रेज करा, लेकिन जब आपने पैसे रिसीव करे तो 102 रुपए आए बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्चुएशन, तो वो 2 रुपए के ऊपर एडिशनल जीएसटी लाइबिलिटी प्लस या माइनस करना है, तो यहाँ पर आती है। ऐसा कोई चेंज जो ऊपर लिस्टेड नहीं है, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से जीएसटी लाइबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, ऐसी कोई सेल बढ़ रही है या ऐसी कोई सेल कम हो रही है, बट वो रीजन ऊपर लिस्टेड नहीं है, तो यू कैन गिव द टोटल ऑफ दैट प्लस और माइनस हेयर। इन सभी ट्रांजेक्शन को जब करेंगे तो यहाँ पर इसका टोटल आ जाएगा। यहाँ पर इसके साइंस दिए हुए हैं नीचे, अगर आप देखेंगे सबको प्लस ही करा हुआ ऑटोमेटिक, बीच में माइनस करके इन्होंने दिखाया है। यहाँ इसका टोटल आ जाएगा। इस टोटल को गवर्नमेंट कंपेयर करवाएगी आपकी जीएसटी 9C से। जब आप जीएसटी 9 फिल कर देंगे एंड पोर्टल के ऊपर इनिशिएट ई फाइलिंग पे क्लिक करेंगे, तो वहां से पीडीएफ निकल के आती है जिसके अंदर 4 फिगर्स होती हैं, और वो फिगर्स एग्जैक्टली ये बताती हैं कि आपको 9C फिल करते वक्त टेबल नंबर 5 और क्यू पॉइंट में क्या डालना है। यू कैन नॉट चेंज दैट फिगर मैनुअली, वो फिगर्स फ्रीज होती हैं, बिकॉज अगर वो आप चेंज कर देंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस गलत हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, वो फिगर्स वहां से उठाइए और इस टर्नओवर को कंपेयर करवाइए, और इसमें जो डिफरेंस होगा फिर यहाँ पर वो निकल के आ जाएगा, या आइदर इट कैन बी पॉजिटिव आइदर इट कैन बी नेगेटिव। होप यहाँ तक सभी को क्लियर है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल इन एनुअल रिटर्न। ये किसी ने समझ लिया है तो इसके बाद एनुअल रिटर्न में इतनी बड़ी टेबल कोई बनती नहीं है जिसको कंफ्यूजन होगी समझ में। अगर यहाँ पर सबको समझ आ गया देन मैं आगे बढ़ता हूँ। You should understand the difference. You should understand why I am making this table and what the reason behind this. I am making this table just to bring my books of accounts and compare it with my GST turnover. I am moving ahead. Serial number C, point explain. Unadjusted advances at the end of the financial year. Are you asking about this?
भारतीय एयरटेल का एग्जांपल लेता हूं मैं। भारतीय एयरटेल को आपने एडवांस पेमेंट कर दी, आपका बिल आया अप्रैल फरवरी टू मार्च का, 1000 रुपीज का बिल था, आपने उसको 1500 रुपीज पे कर दिए, लेट्स से 2500 रुपीज पे कर दिए। भारतीय एयरटेल हैज रिसीव्ड एक्सेस अमाउंट ऑफ 1500 रुपीज। सर्विसेज प्रोवाइडेड, सप्लाई प्रोवाइडेड बाय भारतीय एयरटेल इज सर्विसेज। सर्विसेज पे जब एडवांस रिसीव होता है तो भारतीय एयरटेल इज रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज जीएसटी टू द गवर्नमेंट इन द मंथ ऑफ रिसीविंग। तो भारतीय एयरटेल मार्च के महीने में जो अपनी जीएसटी रिटर्न भरेगी, तो एक्स्ट्रा 1500 रुपए पे, 25 रुपए माइनस 1000 रुपए पे जो जीएसटी बनता होगा वो गवर्नमेंट को जमा करवाएगी। बट वो 1500 रुपए भारतीय एयरटेल की बुक्स में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा, वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा नेक्स्ट ईयर में जाके, बट जीएसटी उसने पे कर दिया है। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, ऐसी सेल्स को, ऐसे एडवांसेस को आप ऐड करिए। क्यों ऐड किए? बिकॉज ऊपर रेवेन्यू में तो नहीं आ रहा है, बट जीएसटी के लिए वो एडवांसेस आपको ऐड करने होंगे। व्हाट द गवर्नमेंट मीन टू से, अनएडजस्टेड एडवांसेस, ऐसे एडवांसेस जिसके अगेंस्ट में बिल नहीं बना है, जो अभी तक एडजस्ट नहीं हुए हैं, वो एडवांसेस आप एट द एंड ऑफ ईयर, पूरे साल के आखिरी में ऐसे कितने एडवांसेस हैं जो एडजस्ट नहीं हुए हैं, उनको आप यहाँ पर ऐड करके दिखाइए। होप नाउ इट इज क्लियर। Any more queries? I will wait for one or last minute for this table because I just want to focus on this table because rest of the part is not that important. You can even drop that, but this table is seriously very important. If anyone have queries, please post it. I'm moving ahead. Anyone have queries? Then please let me know. I will answer you. Next is point number 6. Point number 6 says जो यहाँ पर आपके डिफरेंसेस निकल के आए हैं इन द प्रीवियस टेबल, अनरिकनसाइल्ड टर्नओवर जो निकल के आया है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव रीजन ऑफ दैट। इसके रीजंस क्या है? रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, आपको रीजन बाय रीजन उसको देना होगा। दिस टेबल, अभी आप देखेंगे यहां जो टर्नओवर था, इस टर्नओवर के अंदर एक्सपोर्ट भी इंक्लूडेड था, इस टर्नओवर के अंदर ऐसी सर्विसेज भी इंक्लूडेड थी जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स सामने वाले को पे करना है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इस टर्नओवर को, जो नीचे एनुअल रिटर्न का टर्नओवर आ रहा है जीएसटी 9 का, इसको कंपेयर करवाया पॉइंट नंबर 5 से, पॉइंट नंबर 5 ऑफ जीएसटी 9, जिसके अंदर टैक्स पेबल वाला टेबल नंबर 4 प्लस टेबल नंबर 5 दोनों के टोटल से कंपेयर करवाया। बट गवर्नमेंट ने कहा हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो टैक्स मिलना नहीं है इस टर्नओवर पे, टैक्स तो हमें टेबल नंबर 4 ऑफ जीएसटी 9 पे मिलना है। तो गवर्नमेंट ने एक और इसके एक्सटेंडेड पार्ट बनवाया। गवर्नमेंट ने कहा जो आपका टर्नओवर पिछले टेबल नंबर पॉइंट नंबर 5 में निकला है, उसके अंदर से आप एग्जेम्प्टेड, निल रेटेड, नॉन जीएसटी, नो सप्लाई टर्नओवर को लेस कर दीजिए, एक्सपोर्ट को लेस कर दीजिए, ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे होना है उसको लेस कर दीजिए। फिर जो टर्नओवर निकल रहा है इसको पॉइंट नंबर 4 से कंपेयर कीजिए। जो टर्नओवर आएगा दैट विल बी टेकन एज किसमें क्या टैक्स पेबल है या क्या टैक्स पे करना है आपको। होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। पॉइंट नंबर 5 टॉक्स अबाउट कंप्लीट टर्नओवर इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट, रिवर्स चार्ज। पॉइंट नंबर 7 हमने उस टर्नओवर में से एक्सपोर्ट और निल रेटेड हटा दिया, यहाँ से पॉइंट नंबर 7 आ गया। पॉइंट नंबर 8 आस्क फॉर द डिफरेंस, कि इसके अंदर कोई डिफरेंस आया तो उसका कोई रीजन देना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 9 कि जो आपकी सेल आई है पॉइंट नंबर 7 के अंदर, यहाँ पर जो सेल आई है उसका टैक्स रेट वाइज बाइफर्केशन बताइए कि उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना है, उस पर सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, आईजीएसटी कितना बनता है, 5% कितना बनता है, 12% कितना बनता है, 18% कितना बनता है, 28% कितना बनता है, 3% कितना बनता है, एंड 0.25 एंड 1 कितना कितना बनता है। सिंस जो ऊपर ये अमाउंट है इसके अंदर आरसीएम की इनवर्ड सप्लाई ऑफ आरसीएम इज नॉट इंक्लूडेड हियर। आप देखेंगे कहीं पर, यहाँ पर हमने यहाँ पर जितनी भी बात करी है वो सिर्फ आउटपुट की बात करी है, इनवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज में जितनी हमने रिसीव करी है उसकी बात नहीं करी है।
बट टैक्स तो उसके ऊपर भी पे करना था। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्पेसिफिकली आरसीएम के कॉलम अलग से बना दिए, 5% आरसीएम, 12% आरसीएम, 18% आरसीएम, 28% आरसीएम। यहाँ पर उसकी टैक्सेबल वैल्यू, और सीजीएसटी एसजीएसटी को, ऑडिटर को बोला आप बताइए कि कितना वैल्यू का 5% वाला गुड्स है, कितना 12% वाला, 18 वाला, 28 वाला सर्विसेज है, जिसके ऊपर क्लाइंट इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स। ये फिगर्स ऑडिटर प्लॉट करेगा। देन गवर्नमेंट ने नीचे उसका टोटल निकलवा लिया। टोटल आने के बाद गवर्नमेंट ने बोला इसको कंपेयर कीजिए एनुअल रिटर्न में आपने कितना टैक्स पेबल दिखाया था, टेबल नंबर 5 के अंदर कितना टैक्स पेबल दिखाया था, उससे प्लस या माइनस आप बता दीजिए, ये आ जाएगा अनरिकंसाइल्ड पेमेंट। इस पेमेंट को आप कंपेयर कीजिए, रीजन दीजिए, रीजन देने के बाद एडिशनल अमाउंट पेबल बट नॉट पेड, ऐसी अमाउंट जो आपने पेबल थी और पे नहीं करी है, उसकी टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स लाइबिलिटी, सीजीएसटी एजीएसटी आईजीएसटी में उसका ब्रेकअप। होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो। आई एम मूविंग अहेड। With this, we have completed our output part. Now I'm coming to input part. Input part says बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना क्रेडिट आपने उस जीएसटी में लिया है। आईटीसी बुक्ड इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर, क्लेम्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर। ट्रांजिशनल क्रेडिट की बात कर रहे हैं बेसिकली। ये नेक्स्ट ईयर या गोइंग फॉरवर्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए आया था कि पुराने साल का जो क्रेडिट है वो आपका, पुराने साल का जो क्रेडिट है वो बेसिकली यहाँ पर आपको ऐड करके दिखाना था। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। So basically ITC availed as per बुक्स में कितना आईटीसी अवेल करा है, आईटीसी बुक्ड इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर, ये ट्रांजिशनल क्रेडिट का है, दिस इज नो मोर रेलिवेंट। आईटीसी बुक्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर टू बी क्लेम्ड इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। प्लीज लिसन मी वेरी केयरफुली, कंफ्यूज मत हो जाइएगा वर्ड्स में जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है आईटीसी बुक्ड, नॉट अवेल्ड। वो कहना चाह रहे हैं ऐसा कोई क्रेडिट जो आपने बुक्स में तो एंट्री कर दी है बट 3B में अवेल नहीं करा है, ऐसे क्रेडिट को आप लेस कर दीजिए। ऐसा क्रेडिट जो आपने बुक्स में एंट्री कर दी है बट 3B में लेना भूल गए, ऐसे क्रेडिट को लेस कर दीजिए। और यहाँ पर जो नेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा क्रेडिट जो आपने 3B में एक्चुअली में लिया होना चाहिए। देन कंपेयर इट विद द एनुअल रिटर्न, जो डिफरेंस आपका पास आ जाएगा, कितना एक्सेस क्रेडिट आपने लिया है या फिर कितना कम क्रेडिट आपने लिया, कितना क्रेडिट आपकी बुक्स के अंदर अवेल करा है। ऐसा क्रेडिट जनरली ये ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए होता है जो आपने पिछले साल बुक कर लिया था बट इस साल में अवेल करा होगा, इस साल में बुक कर लिया है बट अगले साल क्लेम करोगे। नेट फिगर कंपेयरिंग इट विद द एनुअल रिटर्न, डिफरेंस ऑफ दैट, इट इज क्लियर, इट इज कंप्लीट क्लियर। डिफरेंस रीजन, रीजन ऑफ differences, and the last table in this is input part is आपने जितना आईटीसी अवेल करा है उसको वो नेचर बाय पूछ रहे हैं कि वो परचेज से रिलेटेड है, वो आपके पीएनएल के अंदर घुस गए हैं। आज तक वो आपके सिर्फ सेल्स पार्ट पे थे, वो पीएनएल के खर्चों में घुस गए हैं। आपने 1000 रुपए का क्रेडिट अवेल करा है पूरे साल में, वो पूछ रहे हैं 1000 रुपए में से परचेज का क्रेडिट कितना है, फ्रेट का क्रेडिट कितना है, पावर एंड फ्यूल का क्रेडिट कितना है, इंपोर्टेड का क्रेडिट कितना है। दे आर आस्किंग नेचर ऑफ द एक्सपेंसेस, उनका वैल्यू कितना है, उसके ऊपर आपने कितना क्रेडिट अवेल करा है। बेसिकली दे आर आस्किंग द बाइफर्केशन ऑफ total credit availed during the period, comparing the total with the total credit you have availed,
and last is unreconciled difference. Reason of any differences, and last is कितना पेबल पार्ट आएगा ड्यू टू आईटीसी डिफरेंसेस, आईटीसी की वजह से कितना टैक्स आपको एक्स्ट्रा पे करना है। एंड लास्ट पॉइंट इज ऑडिटर से रिकमेंडेशन ड्यू टू नॉन रिकंसिलेशन। लास्ट में ऑडिटर बताएगा कि कितना टैक्स क्लाइंट को देना बनता है इन कैश, 5% के अंदर कितना देना है, अलग अलग स्लैब्स में कितना देना है, सेंट्रल टैक्स में कितना देना है, स्टेट टैक्स में कितना देना है। इसी के साथ आपकी ऑडिटर की इंफॉर्मेशन, ऑडिटर का प्लेस, नेम ऑफ सिग्नेटरी, मेंबरशिप नंबर, डेट, फुल एड्रेस। पार्ट बी फिल करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डिटेल आएंगी, मैंने ऑडिट करा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कोई ऑब्जर्वेशन है तो ऑडिटर की वो लिख सकता है यहाँ पर। अगेन फर्दर ऑडिटर की डिटेल, और वो अपना डिजिटल सिग्नेचर लगा के रिटर्न को यहाँ से जेसन जनरेट हो जाएगा। जेसन कैसे जनरेट होगा, ये सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेगा जनरेट जेसन फाइल टू अपलोड जीएसटी एंड 9C डिटेल ऑन जीएसटी पोर्टल। वंस ही विल क्लिक हियर, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पर उसके डिजिटल सिग्नेचर लग जाएंगे और ऑटोमेटिकली एक फाइल निकल के आ जाएगी। दैट फाइल विल बी अपलोडेड ऑन द जीएसटी पोर्टल। बाय दिस I have closed with the annual return and the reconciliation statement. If anyone have any queries, then please let me know. I am waiting for another 1 or 2 minutes. With this, I will hand over the mic to Mr. Ashish, who will and going to take another 15 to 20 minute session before we close our this 10 days training session with you. I am waiting for another 1 or 2 minutes to take up any query on the GST part and the tax part. You can ask me later on also, that's not an issue, but if you want to discuss it right now, you can discuss me. Only CA can file GST and 9C plus CWA can file 9C. CA or CAWA in practice can file GST and 9C. And I really like to thank each one of the participants with my heart to be a patient listener. Hopefully you have been able to achieve the objective of this class. Before coming, what was your objective to achieve to be learned in this class? Hopefully we have been able to provide you that. I would sincerely request you, each one of you, to provide your feedback. We have received few feedbacks, but not with each one of you. We sincerely request you for it will be really helpful to improve our next sessions, next topics, and you can also suggest us topics what you would like to take up in the